Good morning, dear children. Today we are going to continue with the second part of the chapter 18, Price Rise and Consumer Awareness, Class 10, Gujarat Board Social Studies. In the last part, we have learned about what was price rise and what are the consumer awareness that is required, the reasons why price rises. And now we are going to study the reasons of price rise in an elaborate manner. Now, what is price rise? The continuous and constant rise in price in different fields of economy at a high rate is called price rise. So, the continuous and constant rise in price in different fields of economy, इसे कहते हैं price rise. अब price rise जो है, it is beneficial for economy. बहुत ही important चीज़ है. लेकिन excessive amount of money is used on comparatively less commodities, then this kind of price rise condition is called inflationary situation. Now, what are the reasons for price rise? There are mainly 8 reasons. Increase in monetary supply, population growth, increase in export, high price of raw material, usage of non-registered currency, price rise by government, natural factors, and smuggling, hoarding, and black marketing. So these are the 8 very important reasons why there is price rise in the nation, in the country. Now, the lives of poor and middle class people become miserable. The rate of savings and capital generations decrease due to price rise, and foreign investment decreases. Production of necessary goods decreases, so scarcity is created. So now let us see what are the main factors which are responsible for price rise. Among them, 2 are very important, that is due to lack of instantaneous increase in production and supply of commodities and services in economy. And the second one is due to sharp increase in total demand of country as compared to supply, the continuous price rise is seen. Now, the first reason is increase in monetary supply. Over here, supply of money in economy increases in 3 ways. तो मनी की सप्लाई मार्केट में किस तरह से इंक्रीज होती है? देयर आर 3 वेज. वन इज फिलिंग डेफिसिट रिप्लेसमेंट, दैट इज बाय जनरेटिंग न्यू मनी. And then increase in circulation of money, that is increase in transaction of money in market. And then the third one is to decrease rate of interest on debt. Debt मतलब लोन. तो पहला रीज़न क्या है? फिलिंग डेफिसिट रिप्लेसमेंट, दैट इज़ बाय जनरेटिंग न्यू मनी. तो ये काम कौन करता है? ये हम और आप नहीं कर सकते. ये कोई भी अपनी मर्ज़ी से कि हम अपने चलो आज करेंसी घर में ख़त्म हो गई है तो न्यू प्रिंट कर ले, ऐसा हम नहीं कर सकते. दैट इज़ फ्रॉड. तो ये कौन करता है? ये RBI, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया. लेकिन वो अकेले भी ये डिसाइड नहीं कर सकता है. जो कंट्री का फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो, प्लस उनकी जो फाइनेंस टीम है, प्लस प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, उन्हें ही ये प्रावधान दिया गया है कि वो लोग जब कंट्री में डिफिसिट हो तब वो लोग न्यू करेंसी जनरेट करने का काम कर सकते हैं. ऐसे ही कभी भी उठकर बनाना है ऐसा नहीं चलता है. वी हैव टू फॉलो द सीरीज़ ऑल्सो. आपने देखा होगा हर नोट के ऊपर एक नंबर दिया गया है, एक सीरीज़ दी जाती है, तो उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड होता है कि इस सीरीज़ से इस सीरीज़ तक के नोट्स प्रिंट होकर मार्केट में अवेलेबल हैं. तो जब न्यू नोट्स जनरेट होते हैं, मार्केट में आते हैं, तब उनकी भी सीरीज़ दी जाती है जिनका ब्यौरा, जिनका पूरा डिटेल रखा जाता है. Then increase in circulation of money, that is increase in transaction of money in market. मतलब अगर हमारे पास जो हमारा बजट है उसके अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी है, then what do? We go for shoppings, we go for tourist places, we go and buy so many things, we visit so many places. तो वो उससे क्या होता है? हम मनी खर्च करते हैं. तो जब हम मनी खर्च करते हैं तो क्या होता है? मार्केट में मनी का ट्रांजैक्शन होना शुरू हो जाता है. एंड देन टू डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट. अब अगर बैंक में से हमें लोन लेना है और लोन पर हमें हाई इंटरेस्ट देना होता है तो क्या करते हैं लोग? तो लोन नहीं लेते. लेकिन अगर इंटरेस्ट कम हो जाए तो क्या होता है? तो लोन
लेना शुरू कर देते हैं लोग और ज़्यादा लोन लेते हैं और उस अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर कोई भी ऐसे काम है उनमें अगर उनको इंटरेस्ट कम लगे तो ही वो लोन ले सकते हैं, तो उससे भी बहुत बेनिफिट होता है। When there is increase in money, income of people, purchasing power, effective demand of commodities and services increases, but total supply does not increase according to it. अब जब मनी और इनकम ऑफ पीपल इंक्रीज हो जाती है तब परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होती है, इफ़ेक्टिव डिमांड ऑफ कमोडिटीज़ भी बढ़ जाती है। जब हमें किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो और हमारे पास पैसे ना हो उसे ख़रीदने के लिए, हमारे पास मनी ना हो तो हम उस चीज़ को नहीं ख़रीदते, लेकिन अगर हमें वो चीज़ की डिमांड है और हमें ख़रीदना है तो हम, अगर हमारे पास अलाउ है, हमारा बजट करता है तो ही हम उसे ख़रीद सकते हैं। So, price rises there. In order to fulfill planned and unplanned expenditures, government increases supply of money by generating new money through deficit replacement policy, increase in administrative expenses of government, unplanned expenditure, defense expenditure, or increase in expenditure of different welfare schemes and fares. Expenditure on celebrations, public or private expenditure leads to sudden increase in supply of money in the market, which increase purchasing power, resulting in increase of price level. Thus, increase in purchasing power becomes the reason of price rise. So, all these are the reasons for creating the price rise situations. No increase is there in total production or supply of commodities and services in market due to unplanned expenses of government, but due to increase in salary or allowances, supply of money increases in the hands of people. तो अगर मान लो एक घर है, उसमें एक इनकम जो है वो लिमिटेड है, हमें पता है कि हर महीने हमारे पास इतनी ही सैलरी आने वाली है, तो हम क्या करते हैं, अपने प्लान के हिसाब से ही खर्च करते हैं। लेकिन अगर हम अनप्लान्ड, हम बिना सोचे समझे शॉपिंग करने चले जाएं, होटलों में खाना खाने चले जाएं, कहीं भी घूमने चले जाएं, तो क्या होगा, हमारे पास जो अमाउंट ऑफ मनी सेविंग की है अगर, वो भी खर्च हो जाएगी और हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। और वहाँ से घूम कर आए और उसके बाद हमें ये टेंशन होगी कि अब हम राशन कहाँ से लाएं, हम स्कूल की फ़ीस कहाँ से पे करें, हम ये जो ज़रूरत का सामान है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कहाँ से पे करें। लेकिन अगर हम प्लानिंग करके चलते हैं तो क्या होगा, हमारा जो एक, हमें पता है कि इतनी हमारी सैलरी है, इतना हमारा इनकम है, तो उसको हम प्लान करके चले कि अब ये अमाउंट हमें स्कूल फ़ीस में खर्च करनी है, ये अमाउंट हमें कोई शादी है उसके लिए खर्च करनी है, ये अमाउंट हमें कोई बीमार है तो उसकी मेडिकल के लिए खर्च करनी है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ये कंपलसरी है। घर का राशन लाना, ऑल दीज आर कंपलसरी थिंग्स। तो हमें अपने बजट के हिसाब से ही प्लानिंग करके काम करना चाहिए। लेकिन अगर हम अनप्लान्ड तरीके से कोई भी काम करते हैं तो हमारी इकोनॉमी लेवल, अगर एक घर है उसकी डाउन हो सकती है, तो कंट्री में भी अगर गवर्नमेंट अनप्लान्ड तरीके से काम करेगी तो क्या होगा, कंट्री की इकोनॉमी भी खराब हो जाएगी। बट ड्यू टू इंक्रीज इन सैलरी और अलाउंसेस, अब अगर कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, वो फैक्ट्री में काम करे या फिर किसी ऑफिस में काम करे, अगर उसको सैलरी ज़्यादा मिलती है, अगर वो बिजनेसमैन है और उसको बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, तो क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। तो लोगों में पैसा ज़्यादा, एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन जो है, क्योंकि अगर किसी के पास ज़्यादा इनकम होगी तो वो क्या करेगा, अपने लिए न्यू लग्जरी आइटम्स खरीदेगा, न्यू व्हीकल्स खरीदेगा, या फिर कहीं पर भी घूमने जाएगा, तो नेचुरली वो जो खर्च करेगा वो किसी और की इनकम का सोर्स बनेगा। Along with it, resources of production starts getting more value, so income increases, leading to cumulative increase in supply of money. As a result of it, purchasing power increases, that is total demand increases, but total supply doesn't increase in accordance. This leads to price rise. So all these are the reasons for the price rise situations. Thus, price rise
is a result as well as reason for increase in supply of money. The bank reduces the rate of interest on credit as well as increases its reserved cash, which helps it to give loan and credit at low rate of interest and mild condition, which results in increase in supply of money in hands of people, which creates pressure on demand of commodities and substantially causes price rise. तो अगर जो बैंक में से लोन लेकर अपना बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, एक फार्मर अपने सीड्स या फिर ट्रैक्टर्स को ख़रीदने के लिए लोन ले रहा है और उसे बैंक में से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़े, तो क्या होगा, वो या तो लोन नहीं लेगा या फिर उसके जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने में, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करने में उसने खर्च किया है, उससे लॉस में उसे अपना फार्म प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, तो नेचुरली वो लोन लेने की हिम्मत ही नहीं करेगा। लेकिन अगर बैंक में हमें लोन मिल रहा है और उसमें कोई सब्सिडी मिल रही है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके अंतर्गत हमें लो इंटरेस्ट रेट देना पड़े, तो नेचुरली क्या होगा, हम लोन लेंगे और लोन लेने से हम क्या करेंगे, अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। अपने बिजनेस को बढ़ाया तो नेचुरली इनकम बढ़ेगी, हमारी इनकम तो बढ़ी ही, लेकिन जो बैंक से हमने लोन लिया था उसका हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे किया। अब बैंक जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी बढ़ती है। सो इट इज़ ऑल गिव एंड टेक टाइप ऑफ रिलेशन। Now the second main reason is population growth. Now what is that? Population increases at a rate of 1.9% in India. Every year population जो है 1.9% बढ़ रही है। उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा अनाज ख़त्म होगा, ज़्यादा पानी ख़त्म होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, एवरीथिंग विल बी कंज्यूम्ड मोर एंड मोर एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नौकरी है उसमें हमें सिर्फ 5 कैंडिडेट्स चाहिए, लेकिन उस एक 5 पोस्ट के लिए 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं। अब उन 1 लाख में से सिर्फ 5 कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट करना हो तो कितने रह गए बेरोजगार, कितने रह गए अनएम्प्लॉयड? 99,4,500 लोग बेरोज़गार रह जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो नेचुरली क्या होगा, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी। सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी तो अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें हाई प्राइस में भी सामान लेना पड़ेगा। So, because of the speedy increase in population of the country in 2001, an imbalanced condition in demand and supply was created, which led to shortage of supply, leading to price rise. अब मान लो एक फैमिली है, उसमें 4 मेंबर्स रहते हैं, लेकिन अचानक वहाँ पर 10 मेंबर्स आ जाएं, तो क्या होगा, हमारे पास राशन उतना ही है, हमारे पास रूम उतने ही हैं, हमारे पास पानी उतना ही है, लेकिन जब 4 लोग जो खा रहे थे वो डिवाइड किस में हो जाएगा, नेक्स्ट 10 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, या तो कम मिलेगा या फिर जो हमारा बजट है वो जल्दी जल्दी फिनिश होने लग जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ इन आवर कंट्री। देन द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट. Because of increase in demand of Indian goods in foreign market, government has encouraged increase in export, as a result of which availability of commodities decreases in the local or internal market. अब क्योंकि इंडियन गुड्स जो हैं वो फॉरेन मार्केट में ज़्यादा डिमांडेबल हैं, ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो क्या होता है, गवर्नमेंट को उन्हें एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है। अब गवर्नमेंट ने ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट कर दिया, लेकिन प्रोड्यूस उतना नहीं हो रहा है कि अपने कंट्री की ज़रूरतों को पूरा कर सके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो कमोडिटीज़ हैं उनकी डिमांड अपनी कंट्री में पूरी नहीं हो सकती। वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है पर उनको मिल कम रही है, इस वजह से वो क्या होता है, वो अपने लोकल मार्केट तक नहीं पहुँच पाती हैं। सो स्कैरसिटी इज़ ऑब्जर्व, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई अगेंस्ट डिमांड लीड्स टू प्राइस राइज. Then the fourth point over here is high price of raw material. अब अगर shortage of raw material leads to increase in production cost, so price of commodities increases. On the other side, consumers of produced goods are same workers or common people.
they demand for increase in salary, and when it is satisfied there is again increase in production cost resulting to price rise. तो अगर रॉ मटेरियल का रेट बढ़ जाए तो नेचुरली क्या होगा, जो कमोडिटी है उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा. अब मान लो एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं कि एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है, वो ड्रेस का कॉस्ट क्या है, कॉटन की ड्रेस है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या लगा, कॉटन. अब कॉटन जो है रॉ मटेरियल महंगा मिला तो नेचुरली वो ड्रेस जो 100 रुपीज़ की बन रही थी वो 150 रुपीज़ की बिकेगी. अब 150 रुपीज़ की बिकेगी तो नेचुरली जो खरीद रहा है उसको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे. और अगर सैलरी बढ़ जाती है, जो खरीद रहा है उसकी अगर इनकम ज़्यादा है तो वो 150 रुपीज़ में भी खरीद लेगा. सो एनी हाउ अगर शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है प्राइस उसका भी बढ़ेगा. और अगर इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन का कॉस्ट जब बढ़ जाता है तब नेचुरली क्या होता है, सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज होता है. दिस वी हैव ऑलरेडी बीन प्रैक्टिसिंग इन आवर मैथ्स क्लास अबाउट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट एंड लॉस. Then we come to the fifth point, usage of non-registered currency, that is the black money. जो करेंसी हमारी रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब मैंने आप सबको जब क्लास ली थी तब यह होमवर्क भी दिया था कि अपने पेरेंट्स से ज़रा डिस्कशन करना कि व्हाट इज़ ऑडिटिंग, हाउ डू वी नो दैट हाउ मच ऑफ मनी इज़ ब्लैक मार्केटिंग मनी और रियली अर्नड मनी. तो अब देखो एक पर्सन जॉब करता है तो उसकी एक फ़िक्स सैलरी है, वो पता है वो उतनी ही सैलरी उसको आने वाली है. लेकिन एक बिजनेसमैन है तो वो एक सामान खरीद कर लाता है 2 रुपीज़ का, लेकिन वो बेचता है 3 रुपीज़ में. ओके, लेकिन अगर आप बिल नहीं लेते हो, एवरीथिंग जो भी सामान है अगर आप बिल लेते हो तो वो रजिस्टर्ड हो जाता है. तो उसे वो अपनी जो अकाउंट बुक है उसमें मेंशन करना पड़ता है कि मैंने 20 पेंस खरीदे थे और मैंने 15 पेंस बेचे हैं, तो 5 पेंस उसके पास स्टॉक में पड़े हैं. तो ये सब उसकी बैलेंस शीट में उसे शो करना पड़ेगा, तो वो रजिस्टर्ड हो गया. तो 20 पेंस खरीदने का कॉस्ट और 15 पेंस बेचने का कॉस्ट उसे उस बैलेंस शीट में मेंशन करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम बिल नहीं लेते हैं तो क्या होता है, उसके पास वो जो अमाउंट ऑफ मनी बिना बिल वाली है वो रजिस्टर में दिखाएगा ही नहीं, वो शो ही नहीं करेगा. तो उसकी वजह से क्या होगा, वो जो अमाउंट है वो ब्लैक मनी काउंटेड हो जाएगी. Okay, and many people hide their high income or excess income, thus such an income is not mentioned in the accounting book and tax is not paid on it. तो क्योंकि उन्होंने अपनी अकाउंट बुक में उस इनकम का मेंशन नहीं किया है, इस वजह से उन्हें टैक्स में भी वो शो नहीं करना पड़ता. तो जब वो आईटी रिटर्न ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो उनकी ब्लैक मनी बन गई, लेकिन गवर्नमेंट का लॉस हो जाता है. Such unregistered income is called black money. Because of fear of being caught for paying income tax or service tax, rather than storing money, people try to use it as early as possible and purchase unwanted things. अब क्या होता है, क्योंकि जिन लोगों के पास अनरजिस्टर्ड इनकम है वो क्या करते हैं, वो महंगी महंगी सामान भी बिना प्लानिंग के खरीदने चले जाते हैं, बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं, बहुत सारा अनवांटेड सामान खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर लॉस होने लग जाता है. बिकॉज ब्लैक मनी हैज़ बीन सपोर्टिव फॉर प्राइस राइज. देयर इज द डिमांड of those commodities which is not required is being taken by those people. So what happens, the price rise is seen in the market. Now we come to the sixth point, that is price rise by the government. अब गवर्नमेंट कैसे प्राइस राइज करती है, the government increases support prices of petroleum products, chemical fertilizers, support price for agricultural crops by the way of administrative orders, because of which supply of money increases due to steps taken by government to fill the debt. अब गवर्नमेंट कुछ कुछ ऐसी ज़रूरत के सामान है उनके रेट्स बढ़ा देती है, जिसकी वजह से कौन सफ़र करता है, दोज पीपल हु आर परचेजिंग इट. तो कंज्यूमर उस चीज़ पर सफ़र करता है. तो जैसे कि पेट्रोल, हम सुनते हैं ना, कई बार न्यूज़ में भी आता है कि आज पेट्रोल का रेट 5 पैसे बढ़ गया, 3 पैसे बढ़ गया, गोल्ड का रेट बढ़ गया.
तो ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वो कोई इंडिविजुअल एक कोई दुकान है, वो पेट्रोल पंप वाला है, वो अपने आप पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ा सकता। वो स्टेट वाइज एंड कंट्री वाइज गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि पेट्रोल का रेट कितना होना चाहिए। ओके, सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द वैट, द टैक्स दैट वी आर पेइंग, एंड देन वो जो इंक्रीज़ हुआ है रेट में वो कहाँ इफ़ेक्ट करता है, वो हम सब कॉमन कंज्यूमर्स को इफ़ेक्ट करता है। तो नेचुरली व्हाट हैपन्स, द प्राइस राइज इफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ द पीपल। देन द नेचुरल फैक्टर्स, अभी नेचुरल फैक्टर्स में क्या है, कभी फ्लड आ गया, कभी ड्रॉट पड़ गया, या फिर कोई वॉर की सिचुएशन आ गई, या फिर जैसे कि देश में कोई भी उग्र आंदोलन करने निकल जाते हैं, बसेस जला देते हैं, रेलवे ट्रैक्स तोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, अब उसको रिपेयर करने के लिए तो गवर्नमेंट को खर्च करना ही पड़ेगा, तो उनके पास तो बजट उतना ही है। लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा कैलामिटी आ गई, या फिर ये एक्स्ट्रा तोड़ फोड़ कर दी किसी ने, जो गवर्नमेंट की बसेस हैं वो जला दी, रेलवे स्टेशन तोड़ दिया, कोई भी पार्क्स में नुकसान कर दिया, तो उसको रेनोवेट करने का खर्चा किसे उठाना है, वो वाला फैमिली तो नहीं उठाएगा जिसने ये तोड़ा है, वो गवर्नमेंट को उठाना पड़ता है। ये अब इस साल हमने देखा है कि बहुत सारे स्टेट्स में ये रूल लागू हो गया है कि जो तोड़फोड़ करेगा उसे ही फाइन पे करके वो ही रिपेयर करके देना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली